Hello everyone, welcome to JJ Class of Learning Science, and today is 23rd April and this day is celebrated as English Language Day. तो wishing everyone happy English Language Day. तो let's begin from thumbnail, मतलब जान सकते हो कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड फ्रॉम फिजिक्स का चैप्टर है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, क्यों इंटरेस्टिंग है? बहुत सारे फेनोमेनन्स होता है हम लोगों के आसपास, लाइक रेनबो. रेनबो कैसे फॉर्म होता है? व्हाई स्टार यूज्ड टू ट्विंकल. ओके, हम लोग मतलब व्हेन द व्हाई वी सी व्हाट sky appears what blue, why sky appears red during what sunset, during what sunrise. These are phenomena that happens in our daily life, but we don't know why this happens. From this chapter we're gonna know why this happens. Okay, then phenomena, several other phenomena, why you people wear spectacles. These are the things that we will learn from this chapter. So without wasting any more time, let's begin. See, this chapter is about why eye is important. Eye is a part of what our human beings have several 5 different what sense organ, and among the 5 different sense organ, eye is one very important one, and the most important optical instrument gifted by what? Gifted to us by what? God. Okay, Almighty. Because this, without this eye, any optical instrument that we human beings have prepared, like microscope, like telescope, like camera, all these things are will things have no such important without any eye. So if they are, these things are made of with the मतलब इन लोगों का importance मतलब मालूम पड़ता है because of eye. If there is no eye, मतलब इन लोगों का function कैसा होता है मालूम ही नहीं पड़ेगा हम लोगों को. Okay, तो human eye is almost works like a what? Camera. Almost acts like a camera. As in camera there is a lens, in case of human eye there is what kind of lens, and the nature of the lens is convex lens, and human eye works on the basis of refraction of light with the help of what? One lens, convex lens. And how this happens, let's know. So in this chapter, first we are going to know about human eye. What is the structure of human eye, how human eye works. Okay, then what are the important parts of human eye, let's know. So first part, while we are understanding about human eye, structure of human eye, the first part that comes into our मतलब हम लोग जानना पड़ेगा is cornea. Is what? Cornea. अब गलती से इसको मतलब कोरोना नहीं पढ़ना. ओके, बिकॉज सीजन है कोरोना का, मतलब दिस इज व्हाट? कॉर्निया. क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया बोलते हैं. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? आवर कॉर्निया. दिस इज द outer bulging surface. Outer bulging surface of human eye is called what? Cornea. Outer मतलब outer part of human eye, and it is what? Bulging outward part of human eye is called what? See, ऐसा मतलब ऐसा है. ओके, तो bulging part को हम लोग क्या बोलते हैं? Convex. कैसा बोलते हैं? Convex part है. Convex part. The bulging outward part of human eye is called what? Cornea. मतलब ऐसा outermost part of मतलब ये सबसे पहला वाला मतलब first part. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब cornea बोलते हैं. These two are what? Our eyelids. This is our eyelid. This acts like the shutter of the camera. जब हम लोग को मतलब जरूरी होता है तो हम इसको खोलते हैं, और जब हम लोग को जरूरत नहीं होता हमको क्या करते? शटर ऑफ कर देते हैं. ओके, लाइक द शटर ऑफ द कैमरा. ओके, इनका when you opening this one, light is entering. When you closing this one, light is what? Not entering. Okay, so this first part of the eyelids, after eyelids, the first part of the eye is what? Cornea. Okay, clear? These eyelids are outer part of what? मतलब in they are the one through which if they are opening, light will enter. If they are closed, light will not enter. Okay, after eyelids मतलब first part of the eye is what? Cornea, through which light enters. We know that when we see an object, when light falls on an object and it what? Reflects, it what? Bounce back and falls our eye, and this falls on our eye, and after falling on our eye, several light what? A part of the light ray what? Bounce back, मतलब reflection होके चला जाता है. Okay, reflection होके निकल जाता है. Only a part what? Enters through what? Enters through cornea. So we can understand if like cornea acting as a window. If you are opening a window, or light is entering, like similar happening through cornea, light is what? Entering into our eye. Okay, behind the cornea के पीछे, behind cornea there is a black color muscle. Okay, behind cornea, the black color part is called what? Iris. It's called what? Iris. क्या बोलते हैं इसको? Iris. Behind cornea there is a colored membrane. Okay, which is what? Membrane, flat membrane, ring shape, okay, ring like होता है, flat membrane होता है, इसको क्या बोलते हैं? Cornea. Okay, muscle membrane होता है, क्या बोलते हैं? Cornea. Behind cornea there is a what? Colored membrane, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Cornea बोलते हैं. Okay, लिख सकते हो मतलब, हाँ वही मतलब
cornea in shape as it is what bulging outward, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स शेप को क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स बोल सकते हो। ओके इजी है मतलब हाँ वही ये वाला लिख सकते हो इजी है। तो बिहाइंड कॉर्निया देयर इज व्हाट रिंग शेप फ्लैट मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइरिश। एंड इन द मिडिल ऑफ द आइरिश try to understand behind cornea there is what iris, black color, flat ring like ring membrane, इसको क्या बोलते हैं cornea iris। in middle of the iris there is a hole middle of the iris there is a hole, and that hole is known by pupil, that hole is known by pupil। middle of the iris there is a hole known by pupil। now we know that pupil is what pupil usually in black color, because what happens in case of pupil light will travel, but there is no reflection is happening, that's why pupil appear what dark in color। in case of this is the region, okay, middle of the iris there is a hole, and this hole is known by pupil। अभी देखो मतलब iris can what because of iris can expand, can what contract, iris can what expand, can what contract। if iris is expanding, okay, अगर बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है this hole is increasing, मतलब pupil बड़ा हो रहा है। if the iris is what contracting, pupil क्या हो रहा है छोटा हो रहा है ना, मतलब size of the pupil is controlled by iris will control the size of the pupil। कब pupil का size का change हो सकता है, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, on the who will control the size of the pupil, iris। okay now because of iris बड़ा हो सकता है छोटा भी हो सकता है। okay कौन बड़ा हो छोटा हो सकता है, pupil बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है। okay and the size of the pupil is controlled by the iris। हो गया। behind iris there is also another kind of muscular part, see this one brown color what I have marked is called what ciliary muscle, is called what ciliary muscle। behind iris के पीछे एक और मसल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ciliary muscle। okay ciliary muscle, try to understand behind iris one more muscle membrane is there, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ciliary muscle, this one, okay brown one or orange color one, ciliary muscle। now behind iris there is ciliary muscle, okay iris is connected with the ciliary muscle, and after this there is what eye lens, there is what our eye lens is there। we know that our eye have a what lens, there is what our eye lens is there, eye lens is there। okay लिख सकते हो there is what eye lens। now behind iris there is what our eye lens। now eye lens मतलब मिडिल पे होता है, and ऊपर में क्या होता है ciliary muscle। now there is a thing which connects iris मतलब eye lens with what ciliary muscle, is called suspensory ligament। this ligament joins what ciliary muscle with the eye lens, मतलब eye lens मिडिल पे होता है, मतलब लटका हुआ रहता है। ओके तो लटका हुआ होता है तो उसको मतलब मतलब ciliary muscle कौन जॉइन मतलब कनेक्ट कौन करता है सस्पेंसोरी लिगामेंट, इंपॉर्टेंट वन। which ligament joins ciliary muscle with eye lens, क्या बोलते हैं इसको सस्पेंसोरी लिगामेंट। और पूछा गया तो आई लेंस का नेचर क्या हो सकता है, वो भी क्या होगा हम लोग का कॉन्वेक्स नेचर का होता है। ओके इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मतलब कौन कौन पार्ट मालूम पड़ा, आउटर सरफेस ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स, बिहाइंड कॉर्निया देयर इज व्हाट आइरिस, एंड आइरिस आफ्टर देयर इज अनदर मसल सेल, इसको क्या बोलते हैं सिलियरी मसल। आइरिस के मिडिल में एक होल रहता है, उसको क्या बोलते हैं प्यूपिल। नाउ दिस होल कैन बी व्हाट मतलब बड़ा हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ओके नाउ आफ्टर दिस देयर इज व्हाट आई लेंस, and the thing that joins say ciliary muscle with what eye lens is called what suspensory ligament। okay इतना तो मालूम पड़ गया, these are the parts of human eye। after this eye lens, okay there is jelly like part is transparent, jelly like transparent part, and back of that there is what, and last there is what back of the eye, and back of the eye there is a part where image form is called what our retina, retina is the part of the eye where image forms, okay sensation of light happens in retina this is what there is what our after retina, in retina there are what optical nerve, okay there is what optical nerves are there, and the junction point, at the junction point of retina and eye there is what our blind spot, समझ में आया। behind eye lens last back of the eye there is one more part where lens what image light of light meets, okay image form होता है, उस part को क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं।
and after retina there is what optical nerve is present, जहाँ से मतलब retina eye optical nerve निकल जाता है, okay, eye से मतलब retina से निकल जाता है, that part is what optical nerves, okay, and the junction point between the optical nerves and the retina is called what, our blind spot. blind spot थोड़ा अच्छे से लिखते हो, okay, blind spot, easy है but जानना जरूरी होता है, blind spot, blind, okay. So these are the parts, okay, blind spot. Now the, as I mentioned, the in between eye lens and what retina there is what jelly-like part, jelly-like part is there, jelly-like part is there, jelly-like transparent part, jelly-like transparent part, and transparent you know very well through which light can travel. Jelly-like transparent part is called vitreous humor, vitreous humor, okay, लिख सकते हो VIT REOUS vitreous humor, vitreous humor खत्म हो गया, VIT REOUS HUMR, okay. The jelly-like transparent part between what eye lens and retina is called vitreous humor, okay. And the part between what, we know that there is cornea and there is eye lens, and the part water-like part between what cornea and what retina is called what aqueous humor, aqueous humor, HUMOUR. तो aqueous humor कहाँ पे रहता है, in between cornea and the lens, and मतलब vitreous humor कहाँ पे रहता है, jelly like part मतलब कहाँ पे रहता है, lens and the retina, lens and retina के बीच में रहता है vitreous humor, and aqueous humor कहाँ पे रहता है, cornea and the eyelids, cornea and the eyelids. अभी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो सर टीयर्स कहाँ पे आता है, तो बिफोर टीयर देयर इज व्हाट ग्लैंड इज देयर, टीयर ग्लैंड्स आर देयर, टीयर ग्लैंड्स आर देयर, और उनको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड्स बोल सकते हो, ओके. these gland responsible for our tear, okay. तो these are the parts of human eye, first कहाँ से start हुआ, cornea. Now let's know about the function of each one. तो where cornea, through which light enter, first मतलब eyelids, okay. Now this is the outer part, मतलब in not the actual part, outer part, eyelids, through which if the shutter is closed, like the shutter of the camera, if this one is closed, no light will enter, if this one is open, light will enter, this part, okay. If this one is open, light will enter, closed, light will not enter, okay. Shutter of the camera. After eyelids there is what first part of the human eye, actual first part of the eye is called what, cornea, through which light enters, after cornea there is what, iris, and in middle of the iris there is what, our pupil, size of the pupil controls by iris, कितना बड़ा हो, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, this controls by what, iris. Now बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा, this is the question. This बड़ा मतलब छोटा होना and the बड़ा होना depends on intensity of light, when iris will expand, when pupil will expand, when pupil will contract, this depends on the intensity of the light. If the intensity of the light is more, intensity of light is what, more, that time what will happen, iris will contract and the pupil will become small. अगर light का intensity ज़्यादा हो गया तो iris will contract, होगा and pupil will become small, so that minimum light amount come and through the light amount of light entering our eye should be what, minimum मतलब कम हो, okay. pupil छोटा हो रहा है तो light का amount क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अंदर amount of light क्या हो रहा है, कम हो रहा है, okay. Now if you are in the dark room, what is happening, iris will expand, so what will happening, pupil will become large, so that maximum light, more amount of light can enter in our eye. मतलब समझ सकते हो, if you are in a dark room where what will happen, amount of light is low, intensity of light is what, low, at that time iris will expand and the pupil will become large, so that more amount of light can enter in our eye. If you are in outside and there is a daylight is present, so what, intensity of light is more, as the intensity of light is more, at that time what will happening, iris will contract and pupil will become so that what is happening, low amount of light can enter into our eye, okay. Now this expansion and what, contraction, मतलब बड़ा होना छोटा में थोड़ा टाइम लगता है, okay. This expansion and contraction need bit time. For that reason what happens, when you are suddenly enter into your home from outside, what will happen, you usually see what, dark, okay. You will not see clearly the objects, okay. Why, when you are in the outside, what is happening, the iris will contract and the pupil becoming more small. For that reason low amount of light entering in your eye, because intensity of light is more in the outside. Suddenly if you are entering into your home, what is happening,
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर दैट रीजन क्या हो रहा है, मतलब आइरिश को बड़ा होना पड़ेगा, आइरिश को मतलब एक्सपांड होना पड़ेगा, पीपल को बड़ा होना पड़ेगा। तो फॉर दैट रीजन छोटा से बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसी टाइम मतलब हम लोग को मतलब ब्लर दिखता है, मतलब चीजों को मतलब दिखाई नहीं देता सही चीजों से। मतलब सडनली यू आर इन सिटिंग इन ए डार्क रूम, कोई लाइट नहीं है, सडनली इफ लाइट कम्स व्हाट इज हैपनिंग, आवर आईज व्हाट विल डू, व्हाट विल फील a glare in our eye, glare in our eye. Why this glare happens? Because when is the room is what dark, तो what low amount, low intensity light is very low, तो आइरिश क्या हो रहा है, आइरिश विल एक्सपांड एंड पीपल विल बिकम, पीपल बड़ा हो रहा है, ओके, एट दैट टाइम, सो दैट लाइट कैन एंटर इन मैक्सिमम। बट व्हेन सडनली इट स्विचेस ऑन, व्हाट इज सडनली माने हाई अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी लाइट बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो रहा है, मतलब आइस को पीपल को छोटा होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। फॉर दैट रीजन वी फील व्हाट ग्लेयर। सडनली इफ यू आर एंटरिंग इन सिनेमा मूवी थिएटर, तो बाहर से अंदर जा रहे हो, तो एज द थिएटर इनसाइड ऑफ थिएटर इज व्हाट फुल डार्क, तो अगर बाहर से अंदर जा रहे हो, तो after entering in the cinema you will see what, you will not seeing anyone, as the people are beside you but you are not seeing what is happening, as you are on the outside people what contract छोटा हो रहा है, इंटेंसिटी लाइट बड़ा है, ज्यादा है। बट अगर यू आर एंटरिंग इन द सिनेमा सडनली, तो मतलब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो पीपल को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तो वो छोटा से बड़ा होने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। फॉर दैट रीजन तुमको मतलब चीजें दिखाई नहीं देगा, बट थोड़ा देर के बाद मतलब अच्छे से दिखाई देगा, ओके। तो समझ में आया, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन डन बाय व्हाट, आइरिश, थ्रू व्हाट, पीपल। नाउ साइज ऑफ द पीपल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दिस डिपेंड्स ऑन द आइरिश, मतलब आइरिश कंट्रोल द pupil and the pupil controls the how much amount of light enter into eye, okay, समझ आया। behind iris and there is what, ciliary muscle. now ciliary muscle का मतलब कनेक्शन किसके साथ है देता, लेंस के साथ, by what, suspensory ligament. what is the function of suspensory ligament, this connects ciliary muscle with the eyelids. now this मतलब ciliary muscle का फंक्शन क्या होता है, ciliary muscle मतलब this eyelids is a what, jelly, eyelids is filled with jelly and the मतलब कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर, एंड इसको मतलब साइज क्या चेंज हो सकता है, दिस आइलैंड्स कैन बिकम व्हाट, थिन, कैन बिकम व्हाट, थिक, मतलब साइज क्या चेंज हो सकता है, कैन बिकम थिक, ये ऐसा भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। नाउ दिस चेंजिंग ऑफ द आइलैंड्स, मतलब आइलैंड्स बड़ा होगा, थिक होगा या थिन होगा, दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल मतलब विल कंट्रोल द साइज ऑफ द आइलैंड्स, आइलैंड्स का साइज मतलब किसके ऊपर डिपेंड रहता है, सिलियरी मसल। इफ द सिलियरी मसल इज व्हाट, रिलैक्स्ड, मतलब रिलैक्स्ड है, तो आइलैंड्स विल बिकम थिन, मतलब क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इफ द सिलियरी मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, व्हाट इज हैपनिंग, आइलैंड्स विल बिकम थिक, ओके। इफ द now depends on this depends on the basis of on the object की ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे, on the basis of object our ciliary muscle will what, will change the मतलब change the size of the change the shape of the lens, okay, so that by which it is changing the focal, by changing the focal length. This is the difference between the camera and the eye lens, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कैमरा का फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकता ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट आई लेंस का फोकल लेंथ का चेंज हो सकता है बाय व्हाट, सिलियरी मसल, ओके। थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा कब थिन होता है कब थिक होता है, ओके। दिस इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल। नाउ आई लेंस इज द वन थ्रू व्हिच व्हाट, this is the convex lens, so it will do what, converge. This is the one which converge the light rays, as we know the light from a distance object light के parallel beam of light आता है, and from the near object मतलब light क्या होता है, diverging light rays enter. तो as the light rays are entering into our eye, तो इसका function क्या होता है, to convert the light rays and meet them into what, लाइट रेज को कहाँ पे मीट करना पड़ेगा, रेटिना पे, एंड जहाँ पे लाइट रेज है मीटिंग वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है, वी नो दैट फ्रॉम चैप्टर 10, ओके। जहाँ पे लाइट रेज है मीटिंग वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो eyelids convert the light rays so that they can meet in what, retina, and the retina is the place where, retina is the screen of the eye where image forms. कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, कभी कभी पूछा जाता है रियल एंड द, मतलब जानना बहुत जरूरी होता है, कैसा इमेज बनता है, रियल एंड द इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्ट बनता है, मतलब तुम्हारा इमेज क्या होगा, रियल बनेगा, बिकॉज लाइट रेज विल रियली मीट इन द रेटिना, एंड उल्टा होगा, मतलब इमेज क्या होगा, उल्टा होगा। नाउ द क्वेश्चन कम, अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो हम चीजों को उल्टा क्यों नहीं देखते, ओके, व्हाई इफ द इमेज इज फॉर्मिंग इन आवर रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड, व्हाई वी आर नॉट सीइंग द इमेजेस व्हाट, मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, बिकॉज आवर माइंड इंटरप्रेट्स दैट ऑब्जेक्ट एज व्हाट, वर्चुअल, उसी ऑब्जेक्ट को मतलब जो रियली में इन्वर्ट इमेज बना है उसको माइंड इंटरप्रेट करता है एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई हम लोग चीजों को मतलब जैसे है वैसे देखते हैं, ओके, इन्वर्ट नहीं देखते, बिकॉज माइंड इंटरप्रेट्स एट व्हाट, आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस ऑब्जेक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, उसको वर्चुअल देखते हैं, उसको इन्वर्ट नहीं देखते, बट एक्चुअल इमेज इज फॉर्मिंग व्हाट, रियल एंड द इन्वर्टेड। तो नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर eyelid forms what, images is part of what, retina is the place where image forms. Now in the retina
there is what, so many light sensitive cells are present. While we're talking about light sensitive cells, there are two kinds of light sensitive cells. Light sensitive optical nerves, ultimately light sensitive nerves. Okay, these are of two types, rods and the cones. Rods and what, cone. Two type of optical nerves are present in our retina. Okay, retina. So when the light, when they go, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, eye lens is converging the light rays and meeting the at what, retina. So when they will find the light rays emitted will come in the retina, so they will do what, this now optical nerves will activate. Okay, ये लोग क्या activate हो जाएंगे. Okay, and they will change that signal into electrical impulse and will carry that signal to the brain, and brain will interpret the मतलब object, क्या कैसा object है, हमने कुछ नया है क्या पुराना है. मतलब for example you are seeing a new bird, so you think is it a new bird, I haven't seen it even. Okay, तो you will try to, you will मतलब brain पूछेगा इसका नाम क्या है, तुम मतलब किसी से पूछोगे मतलब इसका नाम क्या है, तो जानने की कोशिश करोगे मतलब this is the new one. Okay, अगर कुछ पुराना तो उसका नाम तो ये हम लोग को मालूम है. तो this as the image is forming on the retina, अब जब मतलब रेटिना में इमेज फॉर्म हो रहा है, suddenly they are, these are optical nerves are activating. Okay, nerve कितने को होता है, दो टाइप का, rods and the cone. rods are the one which are mostly what, they are sensitive to dim light. मतलब डार्क में मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है. rods का फंक्शन डार्कनेस में क्या होता है, ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल you in a dark room you can see several objects. कुछ चीजों को तुम देख सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, because of the rod ऑप्टिकल नर्व. रॉड की वजह से क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ चीजें डार्क में प्रेजेंट में देख सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स लाइक ओल, दे आर व्हाट, दे मतलब उन लोगों को मतलब दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है. ओके, बट नाइट में अच्छे दिख सकते हैं, बिकॉज दे हैव व्हाट, रॉड सेंसिटिव सेल बहुत ज्यादा होता है इनके पास. ओके, नॉक्टर्नल एलिमेंट्स, उनके लिए क्या होता है, रॉड सेल बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई दे कैन विजिबल क्लियरली, दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. ओके, अच्छे से दिख सकते हैं नाइट में भी. बट हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट में नहीं दिख सकते, ज्यादा ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं, जो कुछ भी दिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रॉड सेंसिटिव सेल. ओके, नाउ कमिंग टू कोन. कोन्स आर द वन which are also sensitive with the light as well as मतलब किसकी वजह से, कलर्स. दिन में भी अगर सब रात को में किसी गाड़ी को एक कार को देख रहे हो, उस कलर को मतलब उस कार का मतलब कलर क्या है तुम अच्छे से जज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन नाइट मतलब कोन्स आर नॉट एक्टिवेटेड. कोन्स ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते, एक्टिवेट होता है कौन, हम लोग का कोन्स का पार्ट मतलब वो पार्ट मतलब कौन सा पार्ट दैट आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट और व्हाट, कलर. और रात में क्या हो सकता है, मतलब लाइट भी तो नहीं है, कलर भी नहीं है. दैट्स व्हाई तुम किसी भी कार का मतलब देख सकते हो, कार इज गोइंग बिकॉज ऑफ रॉड, एंड कलर देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ लेस एब्सेंट ऑफ व्हाट, कोन ऑप्टिकल नर्व्स. ओके, तो कौन सा द वन, फॉर एग्जांपल यू आर सीइंग माय शर्ट ऑफ द शर्ट, टी-शर्ट इज व्हाट, पिंक कलर, बिकॉज ऑफ व्हाट, कोन सेंसिटिव सेल. मतलब कलर जजमेंट हम लोग क्या किससे करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ कोन. एंड द रॉड्स आर द वन मतलब डिम लाइट, मतलब डार्क में जो दिख सकते हैं उसके मतलब किसकी वजह से, मतलब रॉड्स की वजह से दिख सकते हैं, एंड कलर्स को जज कर सकते हैं, बिकॉज हियर यू कैन सी डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ द कोन. ओके, तो these are the things then we have to know. Now what is blind spot? At the junction point, nerves and the optical nerve, the junction point between the optical retina and the optical nerve, junction point में क्या होता है, there is no light sensitive cell. This is the junction point. और retina and the optical nerve, जहाँ पे retina and the optical nerve के junction point में क्या होता है, जहाँ से मतलब nerve cell are relieving the what, eye को छोड़ रहे हैं, उसी point पे क्या होता है, there is no light sensitive cell. इस point में there is no light sensitive cell. अगर image is forming on the blind spot तो हम लोग कुछ नहीं दिखेंगे, because there is no light sensitive cell. Okay, the junction point between retina and the optical nerves is called what, is called blind spot. And in blind spot there is no light sensitive cell, तो हम किसी object को नहीं देख सकते अगर किसी image forming on the blind spot तो हम लोग उसको देख नहीं सकते, because of the absence of light sensitive cell. This is the function of different part of the human eye. समझ सकते हो मतलब. तो अगर कुछ, let's revise again. Cornea through which light enters, iris control the how much amount of light enter in our eye through what, pupil की pupil से. Ciliary muscle control the size of the eye lens. साइज उसका नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स नेचर होता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है. एंड सस्पेंसोरी लिगामेंट फंक्शन क्या होता है, इज होल्ड्स सिलियरी मसल विद द, इट्स कनेक्ट सिलियरी मसल विद द आई लेंस. In between this there is what, vitreous मतलब humor. Vitreous humor, it protects the back part of the eye, it protects the front part of the eye. Aqueous humor control the front part of the eye, and vitreous humor control the back part of the eye. Okay, retina is the place where image forms, and in the retina there are nerve sensitive cell like cones and the rods. दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है.
तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, द जंक्शन पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल नर्व्स इन द रेटिना वेयर देयर इज नो सेंसिटिव लाइट, वेयर देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल, फॉर दैट रीजन हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ड्रॉ. हो गया. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंड हाउ आई वर्क्स. तो यहाँ से देखो लाइट इज एंटरिंग इनटू आवर आई एंड फॉलोइंग ऑन द लेंस, एंड लेंस इज कन्वर्जिंग द लाइट रे इनटू द व्हाट, रेटिना. रेटिना इमेज फॉर्म हो रहा है एंड ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग दैट दिस ऑप्टिकल नर्व्स इज कैरिंग दैट सिग्नल इनटू द ब्रेन. देखो लाइट इज एंटरिंग थ्रू कॉर्निया एंड फॉलोइंग ऑन द आई लेंस. आई लेंस इज कन्वर्जिंग द लाइट रेज एंड मीटिंग एट पॉइंट व्हाट, रेटिना. रेटिना से क्या हो रहा है, ऑप्टिकल नर्व्स इज टेकिंग इनटू द ब्रेन एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग दैट ऑब्जेक्ट एंड बता रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है. हम लोग ओके कुछ पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी आर नोइंग अबाउट सस्पेंसरी लिगामेंट, कुछ नया है हम लोगों के लिए. तो कैसे जान रहे हैं, दिस इमेज यू आर रीडिंग, तो वो आई मतलब इसको देख रहा है एंड टेकिंग इट टू द ब्रेन एंड आई एम टेलिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट. आफ्टर मतलब अगर पूछा जाएगा 2-3 के बाद में पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट, इट होल्ड्स सिलियरी मसल विद द आइलेंस. कुछ जान रहे हो मतलब बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इंफॉर्मेशन ले रहा है कौन, ऑप्टिकल नर्व्स, एंड उसका मतलब डिफरेंट कलर देख रहे हो किसकी वजह से, कौन की वजह से, एंड रॉड मतलब अगर डिम लाइट में एक्टिवेट होता है. यहाँ पे तो लाइट बहुत ज्यादा है तो एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है. ओके समझ आया होगा होप अच्छे से. ओके नाउ देयर इज वन थिंग वी हैव डिस्कस्ड एट व्हाट दैट आइलेंस कैन चेंज इट्स शेप. तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया शायद, तो बिकॉज डिस्कशन पार्ट है अच्छे से समझना पड़ेगा. So we have said what that we have discussed that our islands can change the shape. Okay, try to understand important part. मतलब change the shape. Okay, तो shape कैसा होता है? Because as we know that if the lens is what thin, the lens is what thin. If there is one taking a thick lens, okay, thin lens and a thick lens. Okay, both are convex because eye lens is what convex. A thin lens, if light rays fall on a thin lens, तो यहाँ पे क्या होगा? Focal length क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा. ओके एज थिन लेंस कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम होता है. कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम होता है. नाउ कमिंग टू थिक लेंस, इफ लाइट रेज फॉल इट विल कन्वर्ट देम क्लोजर. थिक लेंस हैव मोर कन्वर्जिंग पावर कंपेयर्ड टू व्हाट, थिन लेंस. थिन लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम होता है, बट थिक लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है. नाउ डिपेंड इफ यू आर अंडरस्टूड दिस, व्हाई दिस, बिकॉज़ हियर लाइट इज व्हाट एज द लेंस इज थिन, तो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, थोड़ा कम टाइम यहाँ पे रह रहा है, तो लाइट इज कमिंग एंटरिंग इनटू लेंस विद ए स्पीड. आफ्टर हियर स्पीड थोड़ा विल डिक्रीज एज लेस अमाउंट इज व्हाट लेस, थोड़ा कम होगा, बट आफ्टर दैट अगेन इट विल ट्रेवल. ओके थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा इस पे. आफ्टर लिविंग द लेंस स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड बहुत कम होगा बिकॉज लेंस इज व्हाट मच थिकर. ओके तो इसके वजह से मोटा वाला जो लेंस होता है मतलब थिक लेंस है वह more converging power compared to thin lens. Okay, now see what, try to understand. When an object is मतलब बहुत दूर है, मतलब हम लोग से बहुत दूर है. ओके डिस्टेंट इन्फिनिटी से अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे. किसी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो आई लेंस तो हम लोग का है ना. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी. कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे हम लोग का ऑब्जेक्ट. इन्फिनिटी से हमेशा कैसा रहता है, पैरेलल रेज आता है. ओके इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइट ऑफ रेज आता है ऑन लेंस. ओके अगर किसी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो आई लेंस कैसा रहेगा, थिन रहेगा. आई लेंस क्या रहेगा, थिन रहेगा. एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट करने के लिए उतना पावर की जरूरत नहीं है. एज टू कन्वर्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब लेंस का मतलब पावर क्या हो, थोड़ा कम होने से भी चलेगा. दैट्स व्हाई मतलब when the object दूरी पे उसी टाइम पे क्या होता है, लेंस बिकम थिन. लेंस क्या हो जाए, थिन होता है. आई लेंस के थिक एंड थिन कंट्रोल बाय द सिलियरी मसल क्या रहता है यहाँ पे, तो कनेक्टेड बाय व्हाट लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट. देयर इज व्हाट आवर, यहाँ पे क्या हम लोग का सिलियरी मसल क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा. सिलियरी मसल रिलैक्स रहेगा एंड मतलब सिलियरी मसल रिलैक्स रहेगा तो इट विल पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड लेंस बिकम क्या हो जाएगा, थिन. लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा. Try to understand. Okay, there is our ciliary muscle and there is suspensory ligament. So as the ciliary muscle is relaxing, okay, ciliary muscle relaxing, so it will pull the suspensory ligament. For that reason lens क्या हो जाएगा, thin हो जाएगा. तो उसका converging power कैसा होगा, थोड़ा मतलब कम होगा. फोकल लेंथ थोड़ा दूरी पे कहाँ के बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा. कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा. ओके दूरी बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, इसीलिए मतलब इसका फोकल लेंथ ज्यादा होने पड़ेगा. ओके क्लियर. अभी देखो मतलब
इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर, इससे अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बहुत सामने ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल आई एम सीइंग दिस वर्ड, किसी एक बुक को मतलब ऑब्जेक्ट को ले लो, ठीक है, पहले कुछ नहीं दिखने लगता है. क्लोजर टू द आई, अगर किसी ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई है तो फॉर द व्हाट विल हैपन, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट विल एंटर इनटू आवर आई. किसी ऑब्जेक्ट अगर क्लोजर है, आई के पास है, तो उससे क्या होगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट विल एंटर इनटू आई. ओके, अभी डाइवर्जिंग बीम लाइट को मतलब क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पावर होना पड़ेगा. ऑन दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मतलब व्हाट हैपेंस, दिस सिलियरी मसल विल contract, they will contract. If the ciliary muscle is contracting, then what will happen, this lens will become thick. Okay, ciliary muscle is contracting, तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, लूज थोड़ा लूज हो जाएगा. फॉर दैट रीजन लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा. एंड इफ द लेंस इज बिकमिंग थिक, क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो दे विल कन्वर्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट व्हाट, रेटिना. दे विल कन्वर्ज मोर. तो इसमें क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा रहता है. ओके, अर्ली पहले वाला में कन्वर्जिंग पावर क्या रहता है ना, तो क्वेश्चन कम सर, वो तो डिस्टेंस वाला से मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, ये डायरेक्ट कन्वर्जिंग. डिस्टेंस वाला से मतलब एट फर्स्ट तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंटर, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, बट आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस द रेज बिकम व्हाट, पैरेलल. ओके, एंटर्स आवर आई एज ए, और उस ऑब्जेक्ट से निकलता है कन्वर्जिंग. यहाँ पे जैसा निकल रहा है, ऑब्जेक्ट से निकलता है कन्वर्जिंग, बट आफ्टर सम टाइम वो रेज क्या होता है, पैरेलल होता है, एंटर्स आवर आई. और पैरेलल रेज को कन्वर्ट करने के लिए उतना पावर नहीं चाहिए कंपेयर टू व्हाट हम लोग का मतलब क्लोजर वाला ऑब्जेक्ट. ओके, तो इस पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर, तो कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट जहां दूरी पे. नाउ फ्रॉम दिस you can understand one thing, that our eye lens have the ability to change the focal length, and this changing ability of focal length is called power of accommodation of lens. समझ में आया? Our human eye lens have the ability to change the focal length by what? By increasing the converging ability. By what? Increasing the converging ability, or by changing the shape of lens, by what, thin to thick. Okay, this changing ability of focal length by what eye lens is called power of accommodation. समझ में आया? किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या, आई लेंस हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द लाइट, मतलब आई लेंस का एबिलिटी क्या हो सकता है, फोकल लेंथ यहाँ पे शॉर्ट एंड पहले वाला में फोकल लेंथ ज्यादा था, तो फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिलियरी मसल. ओके, दिस चेंजिंग एबिलिटी ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब अभी देखो, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी लेंस का फोकल लेंथ मतलब एकोमोडेशन, किसी ऑब्जेक्ट हम लोग के पास आ रहा है, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में थिकनेस सबसे ज्यादा कब होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर. अगर किसी ऑब्जेक्ट हमसे आई से मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पे, उसी टाइम सिलियरी मसल विल कॉन्ट्रैक्ट मोर, उसी टाइम लेंस विल बिकम मोर. सबसे ज्यादा थिकनेस कब होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर. और 25 से इफ वी आर कमिंग क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, उसके बाद लेंस डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मोर. सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी होता है 25 सेंटीमीटर से ही होता है, और 25 सेंटीमीटर से अगर से हम लोग क्लोज आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दिस लेंस डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ज मोर, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाएंगे. फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग ए बुक क्लोजर टू योर आईज, उसी टाइम मतलब योर आई विल फील व्हाट, स्ट्रेन, बिकॉज़ दिस ऑब्जेक्ट, दिस लाइंस आर वेरी क्लोज, दिस वर्ड्स आर लेटर्स आर वेरी क्लोज टू योर आई, 25 सेंटीमीटर क्लोजर. उतना कन्वर्ज नहीं कर सकता आई लेंस. दैट्स व्हाई आवर आई का सबसे ज्यादा कन्वर्जिंग एबिलिटी कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर. ओके, तो किसी ऑब्जेक्ट का मतलब नियर में, फ्रॉम दिस टू माने मतलब थिंग्स कम्स इनटू माइंड, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब पास से मतलब दिखने के लिए देयर इज ए डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस. देयर इज डिस्टेंस कॉल्ड, किसी ऑब्जेक्ट को मतलब पास दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग आई के पास दिखने के लिए मतलब सबसे कम डिस्टेंस कितना होता पड़ता है, 25 सेंटीमीटर, एंड उसी डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर विजन. लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं फॉर विजन. अगर इफ यू आर कमिंग क्लोजर देन 20 सेंटीमीटर, तो योर आई विल फील वेल स्ट्रेट. तो किसी ऑब्जेक्ट का मतलब विदाउट एनी स्ट्रेन दिखने के लिए जितना डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन. एंड उसी मतलब फ्रॉम दिस मतलब 2 पॉइंट्स, फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट. किसी ऑब्जेक्ट को दूरी मतलब किसी ऑब्जेक्ट दूर से जा रहा है, तो जितना दूरी पे उसको देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो, उसको बोलते हैं मतलब फार पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको, फार पॉइंट ऑफ द आई. एंड फार पॉइंट को हम वी यूजुअली फार पॉइंट को क्या, फार पॉइंट मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी. क्या होता है हम लोग का, इन्फिनिटी पे होता है. किसी ऑब्जेक्ट को दूरी मतलब दूर जा रहा है,
तो जितने दूरी पे उसको देख सकते हो क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर नियर। किसी ऑब्जेक्ट को मतलब सामने से जितने दूरी पे क्लियर में देख सकते हो विदाउट एनी इंस्टेंट, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, नियर पॉइंट। एंड नियर पॉइंट इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, चेंजिंग द फोकल लेंथ। ह्यूमन आई हैव द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एंड फ्रॉम द पावर ऑफ एकोमोडेशन, किसी ऑब्जेक्ट अगर दूरी पे है तो जितना दूरी पे उसको क्लियर देख सकते उसको बोलते हैं मतलब फार पॉइंट। एंड फार पॉइंट इज ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। एंड अगर ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट कमिंग क्लोजर, अगर 28 सेंटीमीटर से क्लोजर आएगा तो उसको देख नहीं पाओगे, आई विल फील स्ट्रेन। तो 28 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। उससे अगर आगे आओगे तो ऑब्जेक्ट को दिख नहीं पाओगे। तो किसी ऑब्जेक्ट में व्हाट इज द ह्यूमन रेंज ऑफ ह्यूमन आई, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ फॉर नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। इससे अगर उल्टा पल्टा हो गया तो मतलब ऑब्जेक्ट देखने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगा। ओके, नाउ किसी ऑब्जेक्ट अगर दूरी पे फॉर एग्जांपल हम इन्फिनिटी, कहां पे ऑब्जेक्ट हम लोग का, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी में लाइट रे विल एंटर आवर eyelens will enter, and this is our eye. Okay, this is our eye is what, spherical in shape, and diameter कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। किसी बुक में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो if the depending on the question you have to answer, if the question is given 2.5 सेंटीमीटर you can answer 2.5 सेंटीमीटर, if the question is given what 2.3 you can give what 2.3, तो both are correct। Okay, तो if the object is at infinity पे है तो from that object parallel beam of light will enter into your eye, the eye lens is concave in shape, at that time lens will become what, thin। लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा दूरी पे होगा। ओके, एट दैट पॉइंट फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब फोकल लेंथ का मतलब वही लिंक है, फोकल लेंथ विल बहुत ज्यादा होगा फोकल लेंथ। ओके, ऑब्जेक्ट अगर दूरी पे। सिमिलर केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर, दिस इज आवर से आई लेंस, दिस इज आवर व्हाट आई, ऑब्जेक्ट कहां पे अभी, क्लोजर टू आई। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू आई, व्हाट विल हैपन, diverging beam of light will enter into our eye, and then at that point what will happen, eye lens will become what, thick, eye lens will become thick, and if the eye lens is thick तो focal length क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। as if the lens is thick तो converging power is more, if the converging power is more तो focal length क्या हो जाएगा, उसको जल्दी मतलब they will मतलब convert the more, as the converging more तो image will form at the retina, both the cases image is forming at the retina। तो this is ability of changing the focal length by contracting and expanding the lens is called what, power of accommodation। and power of accommodation depends on what, object की दूरी कितना है। okay, so this is all about today's lecture। in this part we have discussed about structure of eye, all the मतलब details explained about human structure of human eye, and we have discussed the power of accommodation, we have discussed about near point and the far point। okay, hope अच्छा लगेगा, share with others।